परमेश्वर की स्तुति हो। Are you ready to receive God's abundance? क्या आप परमेश्वर की बहुतायत को पाने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. हालेलुया। The Lord has already prepared everything and He is going to give it to you right now. परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए आशीषें तैयार रखी है, वो आपको अभी देने जा रहे हैं। Our Father is a creator. हमारा पिता सृष्टि करता है। He is the creator of the universe. वो इस संसार का सृष्टि करता है। He not only created the earth, उन्होंने न केवल पृथ्वी की सृष्टि but की, He created galaxies after galaxies. उन्होंने आकाश गंगा पे आकाश गंगा की सृष्टि की। Once we visited a Singapore planetarium. हमने एक बार सिंगापुर में एक ताराघर को देखा। There they were showing about the wonders about the planets, ग्रहों के बारे में अद्भुत बातों को दिखा रहे थे about the galaxies, और वो आकाश मंडल के बारे में बता रहे and थे they were so beautiful to look at. और वो दिखने में इतने सुंदर थे। And finally they were showing us the earth, और आखिरकार उन्होंने हमें पृथ्वी भी दिखाई and they were explaining about the atmosphere that is upon the earth. और वो उस वायुमंडल के बारे में विवरण दे रहे थे जो पृथ्वी के ऊपर है, And about the gravitational force that is upon the earth. उस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रहे थे जो पृथ्वी And पर है। because of that gravitational force, we could stand, run and live on the earth. और इस बल के कारण ही हम पृथ्वी पर खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। His creations are so beautiful to look at. परमेश्वर की सृष्टि देखने में इतनी सुंदर है। Of all the works of God, the masterpiece of creation is human soul. और परमेश्वर की सभी सृष्टि में से सर्वोत्तम सृष्टि मनुष्य का प्राण है। Our human soul is the masterpiece. हमारा मनुष्य का प्राण परमेश्वर की सबसे उत्तम सृष्टि है। The Bible says in Ephesians 2:10, और बाइबल इफिसियों 2:10 में यूं कहती है, we are God's masterpiece. हम परमेश्वर के उत्तम सृष्टि हैं। We are created in Christ Jesus हम मसीह यीशु में बनाए गए हैं to do good works. कि हम भले काम कर सकें। He has prepared everything in advance. उन्होंने सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखा है। Everything about us is being recorded in His book. हमारे बारे में सभी बातें उनकी पुस्तक में लिखे गए हैं। That's why our daughter Sweetie sings this song. इसीलिए हमारी बेटी स्वीटी इस गीत को गाती है। The Maker loves me. और सृष्टिकर्ता मुझसे प्रेम करता है। Shall we listen to her just 1 minute? क्या हम उसे 1 मिनट के लिए सुन सकते हैं? My Maker loves me. मेरा सृष्टिकर्ता मुझसे प्रेम करता है I love the Maker. और मैं सृष्टिकर्ता से प्रेम करती हूँ। I see you in the sunrise. I see you in the rain. I see you in the laughter. I feel you through the pain. Everything that you have made is beautiful. Oh my God, I can't believe my eyes. But in all of this, to think that you would think of me makes my heart come alive. Your love is like a mighty fire deep inside my bones. I feel like I can climb 1,000 mountains all at once. And I never have to wonder if somebody cares for me. I love the Maker, and the Maker loves me. How lovely it is to sing about the Maker. हमारे सृष्टिकर्ता के बारे में गीत गाना कितना ही सुंदर है। Come on, give a good clap to the Lord. आइए प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं।
the maker of you. हमारे सृष्टिकर्ता के लिए He has created you उसने हमारी रचना की है as a masterpiece. एक सबसे उत्तम सृष्टि के रूप में। You are the best of the whole universe. इस संसार में सबसे उत्तम सृष्टि आप हैं। Your soul is the masterpiece. आपका प्राण एक उत्तम सृष्टि है। Your body is the masterpiece. आपका शरीर एक उत्तम सृष्टि है। He has fearfully and wonderfully created you. आपको भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। That's what psalmist says in Psalm 139 और भजन लिखने वाला भजन 139 में यही कहता है, from 13 onwards. उसके 13 वचन से आगे, You created my inmost being. आपने मेरे अंदरूनी भागों को बनाया है। You knit me together in my mother's womb. आपने मेरे माँ के गर्भ में मुझे एक साथ जोड़ा है। Your creation is so wonderful. आपकी सृष्टि कितनी ही अद्भुत है। I praise you because I've been created fearfully and wonderfully. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मुझे भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। Your works are wonderful. आपके काम आश्चर्यजनक हैं। I know that fully well. हम उसे भली भांति जानते हैं। My frame was not hidden from you मेरा ढील डोल आपसे छुपा नहीं था when I was made in the secret place. जब मैं पृथ्वी के गुप्त स्थानों में बनाया गया था, When I was woven together in the depths of the earth. और जब मैं निचले स्थानों में पृथ्वी के रचा गया था। Your eyes saw my unformed body. तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। All the days ordained for me were written in your book. मेरे सभी दिन आपकी पुस्तक में लिखे गए Before हैं, one of them came to be. इससे पहले कि वो मेरे पास आते। Lord, how precious are your thoughts, God. हे प्रभु, आपके विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। How vast is the sum of them. उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। The psalmist was going on praising God like this. और भजन लिखने वाला इस रीति से परमेश्वर की स्तुति करता जाता Lord, है। you created my inmost being. परमेश्वर, आपने मेरे अंदर के तत्वों को बनाया, So you are so familiar with all my ways. इसीलिए आप मेरे हर मार्गों से परिचित हैं। You know everything what is going to happen in my life, Lord. आप उन सब बातों के जानते हैं जो मेरे जीवन में होने जा रही That was हैं। his praise, dear friends. और ये उसकी स्तुति थी, प्रिय He मित्रों। praises God. वो परमेश्वर की स्तुति करता है। Before we could be formed, God knows that. हमारी रचना से पहले ही परमेश्वर हमारे बारे में जानता He है। knows our bones, our frames. परमेश्वर हमारी हड्डियों को और हमारे तत्वों को जानता है। Dear friends, you are the masterpiece. प्रिय मित्रों, आप परमेश्वर की उत्तम सृष्टि, You are one of a kind. आप एक हजारों में एक हो। You are unique. आप एकदम अजूबे हो। God has created you for a purpose. परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है। How did He create you? उसने आपको कैसे बनाया? He created you as a potter creates a pot. उसने आपको इस तरह बनाया जैसे एक कुम्हार एक घड़े को बनाता है। If you ever happen to see a potter making a clay pot, अगर आप कभी एक कुम्हार को एक मिट्टी का बर्तन बनाते हुए देखेंगे, to begin with, he would be taking a lump of clay to create a pot. तो सबसे पहले वो एक मिट्टी को गूंदेगा, उसको सानेगा। He would have to literally beat the clay, squeeze it. He has to slap it on the wheel. उसको सबसे पहले उस मिट्टी को मारना पड़ेगा, उसे सानना पड़ेगा और उसे उस चाक पर भी रखना पड़ेगा। He had to beat it hard. उसे उस मिट्टी को बहुत जोर से मारना होगा। And then there is a molding process. और फिर उसे आकार देना होगा। He had to shape the pot. और उसे उस
मिट्टी को एक रूप देना होगा। He would draw the sides and then it will grow to a beautiful pot. उस मिट्टी से वो अच्छा आकार बनाकर एक बर्तन का रूप उसे देगा। Then he would be brushing it with colorful glazes. और उसके बाद वो उसको रंगों से भरेगा। Then he would be putting in the fire. और उसके बाद वो उसे आग में रखेगा। Without the intense heat, the pot will be crushed and put it into pieces. उस तेज ज्वाला के बिना वो मिट्टी टुकड़े टुकड़ों में टूट जाएगी। Without the intense heat, the pot would break. उस तेज ज्वाला के बिना वो बर्तन टूट जाएगा। Only if it would be put in the fire, it would be used for a good purpose. यदि वो आग में रखा जाए तो ही वो एक अच्छे काम के लिए उपयोगी होगा। Yes, our God is a potter like this. और हमारा परमेश्वर इसी प्रकार एक कुम्हार है। In Isaiah 64:8, Isaiah says, और यशायाह 64:8 में यशायाह इस प्रकार कहता है, Oh God, you are a father, we are the clay. हे प्रभु, आप हमारे पिता हैं और हम मिट्टी के समान हैं। You are the potter and we are all the work of your hand. आप एक कुम्हार की तरह हैं और हम आपके हाथों की रचना हैं। As we saw in Ephesians 2:10. और जिस प्रकार हमने इफिसियों 2:10 में देखा, Yes, we are created in Christ Jesus. हम मसीह यीशु में सृजे गए हैं। You are branded with the name Jesus. आप यीशु मसीह के नाम से मोहर लगाए गए हैं। Your value is determined by who you are or what you have accomplished. आपका मूल्य इस बात से नहीं है कि आप कौन हैं या आपने क्या पाया है, But by the price paid by our Lord Jesus on the cross. पर इस बात से कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर क्या दाम चुकाया है। Yes, the Lord has paid everything beforehand. हाँ, प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही सारा दाम चुका दिया है, So that you can do good works. ताकि आप भले काम कर सकें। The world may see you as a lump of clay, ये दुनिया आपको एक मिट्टी के समान देख सकती है, but then God sees you as a special treasure, dear friends. पर प्रभु आपको एक अनमोल खजाने के रूप में देखते हैं। In Deuteronomy 14:2, our Lord says, और व्यवस्था विवरण के 14 अध्याय उसके 2 वचन में वचन कहता है, I have chosen you as a treasured possession. मैंने आपको एक अनमोल खजाने के रूप में पाया है। Never say that I am forgotten. कभी ना कहें कि मैं त्यागा गया हूँ। I am forgotten by people. मुझे लोग भूल गए हैं। I have gone through so many troubles. मैं जीवन में इतने परिश्रमों से होकर गया हूँ। Is God there to look at my problems? क्या परमेश्वर है और क्या वो मेरी परेशानियों को देख रहे हैं? You are not forgotten, dear friends. आप भूले नहीं गए हैं प्रिय मित्रों। Along with you, the Lord cries with you. आपके साथ प्रभु आपके लिए रोते हैं। The Lord is shaping you. परमेश्वर आपको एक रूप दे रहे हैं। He is molding you वो आपको आकार दे रहे हैं for you to be a useful pot. ताकि वो आपको एक उपयोगी बर्तन बना सके। Unless the Lord breaks you, you cannot do good works. जब तक परमेश्वर आपको तोड़ते नहीं हैं, आप तब तक भले काम नहीं कर सकते हैं। Once my relative said to me like this, एक बार मेरे रिश्तेदार ने मुझसे इस प्रकार कहा, Evangeline, don't go so close to God. इवेंजेलिन, आप परमेश्वर के इतने करीब ना जाएं। You had to go through so many hardships. आपको जीवन में इतने कष्टों में से होकर गुजरना पड़ा। But then I said, परंतु मैंने ऐसा कहा, my confidence is not on myself. मेरा विश्वास भरोसा मुझ अपने आप पर नहीं है, My confidence is on God. मेरा भरोसा परमेश्वर पर है।
He knows everything that is happening in my life. वो उन हर बातों को जानते हैं जो मेरे जीवन में होता है। My prayer is as Moses prayed in Psalm 90:15. और मेरी प्रार्थना उस प्रकार है जिस प्रकार मूसा ने भजन 90 Lord, make me glad for as many days you have afflicted me. प्रभु जितने दिन आपने मुझे दुख दिया है उतने ही दिन आप मुझे आनंदित भी करेंगे। For as many years I have seen trouble. जितने साल मैंने दुख देखे हैं। I said, this is my prayer to God every day. और मैंने कहा कि प्रभु यही मेरी प्रार्थना है हर दिन आपके I लिए। have gone through enough in my life. मैंने अपने जीवन में अनेक कष्ट देखे हैं। My father, my brother, my mother died. मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी माता का देहांत हो गया। They are gone. वो चले गए। My comfort has gone. मेरा आराम चला गया। All my comfort has gone. मेरा सारा आराम चला गया। But then I know the Lord will make me glad. परंतु मैं जानती हूँ कि मेरा प्रभु मुझे आनंदित करेगा। He will make me happy again. वो मुझे फिर से आनंदित करेगा। I said I will go even more closer to God. मैंने कहा कि मैं प्रभु के और करीब जाऊंगी। Where can I go other than God? मैं परमेश्वर को छोड़ और कहाँ जा सकती हूँ? My expectations comes from Him alone. मेरी आशा परमेश्वर से आता है। I will have rest only in God. मुझे शांति केवल परमेश्वर में मिलेगी। He is my everything. वो ही मेरे सब कुछ है। He is my creator. वो मेरे सृष्टिकर्ता हैं। He can do all things in my life. वो मेरे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। Nothing is impossible unto God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible to God concerning you, dear friends. आपके विषय में परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रिय मित्रों। You may be saying, is this possible in my life? आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या ये बात मेरे जीवन में हो सकती है? Can this thing happen in my life? क्या ये बात मेरे जीवन में हो सकती है? Can this blessing come to me? क्या ये आशीष मुझे मिल सकती है? Dear friends, प्रिय मित्रों, the Lord knows every detail of you. प्रभु आपकी हर बात को जानते हैं। He knows you even when you are in your mother's womb. वो आपके बारे में तब भी जानते हैं जब आप अपनी माता के गर्भ He में has हैं। set you apart as a holy people उसने आपको एक पवित्र जन के रूप में अलग किया है to do only His purpose. कि आप उसके उद्देश्य को पूरा करें। Hallelujah. हालेलुया। Never give up, dear friends. कभी हार न माने प्रिय मित्रों। Never give up on God. कभी परमेश्वर से भरोसा ना उठाएं। A dear grandmother, प्रिय दादी Cha Sasun. जिनका नाम चा सासून है, Let's call her as Cha. हम उन्हें चा करके बुलाएंगे। She was a poor widow who lived in South Korea. ये स्त्री साउथ कोरिया में रहने वाली एक गरीब विधवा थी। She wanted to learn driving. और वो ड्राइविंग सीखना चाहती थी। She lived in a very remote village in South Korea. और वो दक्षिण कोरिया में एक बहुत ही पिछड़े गांव में रहती थी। She wanted to drive, but then she did not learn how to drive. वो गाड़ी चलाना चाहती थी पर उन्होंने कई वर्षों तक नहीं सीखा। She didn't even try to get a license for driving till her 60th age. और उनके 60वें वर्ष के पहले उन्होंने कभी भी एक ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोशिश नहीं की। After she became old, she wanted to learn driving. और जैसे वो वृद्ध हुई वो गाड़ी चलाना सीखना चाहती थी। But then she failed in her written driving test. परंतु फिर वो अपने लिखित परीक्षा में फेल हो गई। In South Korea, they have to write the exam for driving. दक्षिण कोरिया में उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा लिखनी होती है। But this lady, she failed the written test. परंतु इस स्त्री ने अपनी परीक्षा में फेल हो She गई। failed not once, twice, or 10 times. वो न केवल 1 या 2 या 10 बार फेल हुई, But then she failed
for 949 times. परंतु वो 949 बार फेल हो गई। The driving terminology was so new to her. ड्राइविंग की शब्दावली उनके लिए इतनी नई थी। The tutors taught her. उनके शिक्षकों ने उन्हें सिखाया। But then after 949th time, she passed the exam. परंतु 949 बारी के बाद वो पास हो गई। And by the time she passed her और exam, जब तक उन्होंने अपनी परीक्षा को पास किया, all the Korea people came to know about her persistence. कोरिया के सभी लोग उनकी जिद के बारे में जान गए। And they all celebrated her victory. उन सब ने उनके विजय का जश्न मनाया। She was even given a Kia Soul SUV car. और उन्हें किया सोल का SUV कार भी दान में मिला। She got it free of cost. उन्हें पूरे मुफ्त दाम में वो मिला। The whole Korea honored her. पूरे दक्षिण कोरिया ने उनको आदर किया And they gave her a title called Hero, और उन्होंने उन्हें एक शीर्षक भी दिया, हीरो, National Hero. राष्ट्रीय हीरो। She did not give up on her license. उन्होंने हार नहीं मानी अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। She pursued. उन्होंने निरंतर कोशिश की। She tried again and again and again for 949 times. और 949 बार उन्होंने बार बार कोशिश की। If she could do that in a worldly way, अगर वो इस प्रकार एक सांसारिक बात के लिए मेहनत कर सकती हैं, how much more we should be trying hard to go forward. हमें कितने अधिक और मेहनत करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। The devil may try to put us down, शैतान हमें नीचा करने की कोशिश कर सकता है। crush us with his feet. वो हमें अपने पैरों के नीचे दबाने की कोशिश कर सकता है। He will try to put us in a deep pit, वो हमें गहरे गड्ढे में दबा सकता है, as though we are long dead. जैसे कि हम बहुत पहले ही मर चुके हों। But then we would be tempted to betray God. और हमारी परीक्षा हो सकती है कि हम परमेश्वर को भी त्याग दें। By that time, we would be saying, Lord, it's enough for me. और शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रभु मेरे लिए बहुत हो गया, Take my life, Lord. मेरा प्राण ले लें प्रभु। I do not want to live in this world. मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ, Take my life. मेरा प्राण ले लें। The devil does such a thing in our lives शैतान हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करता to है kill ourselves. कि हमारे प्राण ले लें। Never give up, dear friends. पर कभी हार न माने प्रिय मित्रों, Never give up on God. कभी परमेश्वर से भरोसा ना हटाएं। He knows everything in your life. वो आपके जीवन में सब कुछ जानते हैं। He knows even your whispers. वो आपके सरसराहने को भी जानते हैं। You may be whispering to God, आप परमेश्वर से धीरे बात करते होंगे, but God listens even to your whispers. पर प्रभु आपके सरसराहने को भी सुनते हैं। You have a God who is able to do more than you could imagine. आपका ऐसा परमेश्वर है जो आपकी कल्पनाओं से परे आपके लिए कार्य कर सकता है। Some may be crying for small things. कई लोग छोटी बातों के लिए प्रार्थना कर, You may be afraid of small things. आप छोटी बातों से डरते होंगे, But then God even knows that, dear friends. पर प्रभु आपकी उन बातों को भी जानता है। प्रिय मित्रों, Shall we cry out to God? क्या हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। When the enemy comes in like a flood, जब शत्रु हमारी ऊपर एक बाढ़ की तरह आता the है, Spirit of the Lord raises a standard तो against him. परमेश्वर की आत्मा उसके खिलाफ एक नमूने को खड़ा The करती है। enemy might have come in your life like a flood. शत्रु आपके खिलाफ एक बाढ़ की तरह आया होगा,
But then the Holy Spirit is going to come upon you like a gushing flood. परंतु पवित्र आत्मा आपके ऊपर एक उमड़ते हुए बाढ़ की तरह आएगा। The Holy Spirit will push all your problems down with His own hand. पवित्र आत्मा अपने हाथों के द्वारा आपके हर एक समस्या को दूर कर देगा। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है there is liberty, वहाँ पर आजादी है, there is freedom, वहाँ पे आजादी है, there is deliverance. वहाँ पे छुटकारा है। Get filled by the power of God. परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। Come on, receive His anointing. आए उसके अभिषेक को प्राप्त करें। The Lord is filling you right now. परमेश्वर इसी समय आपको भर रहे हैं। He has paid a costly price for you. उसने आपके लिए एक बहुमूल्य दाम को चुकाया है। Will He leave you alone? क्या वो आपको अकेला छोड़ देगा? He will come along with you. वो आपके साथ चलेगा, He will live with you. वो आपके साथ वास करेगा, He will bless you. वो आपको आशीष देगा। In the place of shame, you will have double portion of honor. आपकी शर्म की जगह, निंदा की जगह आपको दुगना आदर मिलेगा। All the things in the world is being put on your feet right now. इस संसार की हर एक आशीषें आपके चरणों पर इसी समय आ रही As you हैं। have surrendered your lives totally to जिस God, प्रकार आपने अपने जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित किया the है, Lord is honoring you. परमेश्वर आपको आदर दे रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।